Good morning everybody, my dear students. So in the previous class we have discussed about meter bridge and we have solved numerous problems related to meter bridge. Actually meter bridge was the practical application of Wheatstone bridge. Okay, so go through this video. That is actually very important video for you for entrance point of view. So today's discussion is again very important discussion. In this video we are going to solve numerous problems related to series connection, parallel connection, mixed connection of resistors. Okay, so before starting, myself Lieutenant Duti Krishna Khandwal, lecturer in physics. So welcome to the 9th video on electric current. Okay, so please remember, in case of series combination of resistors, the formula was the R equivalent is equal to R1 plus R2 plus ... And in case of series combination, we know the current remains constant. Okay, current remains constant throughout, but potential divides as per the resistance. And in case of a parallel combination, R equivalent, that means the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of individual resistances. So for two identical resistors or different, maybe two resistors, for two resistors R equivalent will be equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ये पहला हम डिस्कशन किया है. Please go through that video. Okay, on series and parallel combination of resistors. Please go through that video. I have already discussed about this. Then for identical resistor, for two identical or for n identical resistors, R equivalent is equal to R divided by n. ये हमारा फॉर्मूला है. इधर for n identical resistors, R equivalent will be equal to nr. R plus R plus R plus R like this, nr. Clear? तो ये सब फॉर्मूला हम आज यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का सीखेंगे. चलो, एक होता है, देखो सपोज ये कोई सर्किट है आपका, ये एक सर्किट है. ओके, सो ये सर्किट में अगर यहां एक पॉइंट है और यहां एक पॉइंट है, सपोज ये मेरा बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, सपोज में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. ये है मेरा रेस्ट ऑफ द सर्किट. अभी अगर मैं क्या करूंगा, एक कनेक्टिंग वायर को लेके अगर इधर मैं ज्वाइन कर दूंगा, प्लीज कीप इन माइंड. सो अगर एक कनेक्टिंग वायर ज्वाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. क्लियर? तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो VAB will be equal to 0. VAB will be equal to 0. That means the current will become infinite. So in this situation, we can join these two points. देखो कैसे, इसके रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देखो सपोज ये मेरा बैटरी है, यहां
एक रेजिस्टर है, सपोज R1 रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टर है R2 रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टर है R3 रेजिस्टेंस. Okay, 3 resistors are connected in series. You can see 3 resistors are connected in series. Suppose this is a junction A, this is junction B, this is junction C, this is junction D. तो आप इजीली बता पाओगे R equivalent will be equal to, as per this formula, R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. Suppose potential difference is V. क्लियर? देखो ये तो वेरी सिंपल है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक कनेक्टिंग वायर लेके यहां से यहां ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, क्या होगा बता. एक कनेक्टिंग वायर, क्लियर, एक कनेक्टिंग वायर लेके मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या होगा, ये जो डी पॉइंट, ये भी डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट का और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे जीरो हो जाएगा. यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. दैट मींस पोटेंशियल एट डी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी. दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल VB minus VD will be equal to 0. This implies VB equal to VD. तो ये दो जो रेजिस्टर R2 और R3 में करंट फ्लो नहीं करेगा. Okay, when 2 points are short circuited, there will be no current at all due to zero potential difference. That means actually infinite current इसको बोलते हैं, infinite current flow करेगा, लेकिन इस दो को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इसका सिंपल सर्किट अभी हो जाएगा, इसका सिंपल सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बैटरी, और ये जो हो जाएगा मेरा R1, और देखो यहां से मैं इधर आ जाऊंगा ऐसे. R2 और R3 को मैं एलिमिनेट कर दूंगा. ओके, कहीं भी अगर आप देखोगे, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं. तो इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बताओ, इज इक्वल टू R1. अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, अगर मैं करंट पूछूंगा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1. क्लियर हो गया. चलो और एक मैं प्रॉब्लम लेके आपको बता रहा हूं सिचुएशन को. सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, और ये मेरा दो पॉइंट्स A एंड B across which the battery will be connected. ओके, कनेक्ट बैटरी कर सकते हैं, और अगर बैटरी नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ बैटरी कनेक्टेड है. ओके, मैं दो टर्मिनल A और B अगर दिखा रहा हूं तो यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा. तो अगर इसका रेजिस्टेंस है R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, मेरे को बताओ ये जो सर्किट में जो 4 रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ. वेरी सिंपल, 4 resistors are in series. You see, 4 resistors are in series. So R equivalent will be equal to 4R. R equivalent will be equal to 4R as per this relation R1 plus R2 plus R3 plus R4. 4R. लेकिन अभी मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा. क्या देखो, मैं क्या करूंगा अभी, देखो यहाँ एक कनेक्टिंग वायर अगर लगा दूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट में अगर मैं कनेक्टिंग वायर लगा दूंगा, तो बताओ अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा. बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट द पोटेंशियल विल बी इक्वलाइज्ड. सो वी कैन ज्वाइन दिस टू पॉइंट्स, बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल. तो ये सर्किट ए से रेड्यूस हो जाएगा. देखो ये मेरा सी पॉइंट है, और ये मेरा बी एंड डी पॉइंट. बी और डी को मैंने देखो जोड़ दिया, बिकॉज बी और डी आर कनेक्टेड विथ ए कनेक्टिंग वायर. शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका पोटेंशियल सेम हो गया. सो जो दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसको हम कनेक्ट करके एक पॉइंट
कर सकते हैं। और यहां से देखो आप, ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, तो ये मेरा बैटरी है। देखो अभी क्या होगा, ये जो करंट यहां से फ्लो करेगा ये यहां नहीं आएगा, यहां नहीं जाएगा, बिकॉज बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, करंट इधर जाके इधर आ जाएगा। तो इस दो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट अब ये हो जाएगा ए से आर एंड आर। बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। अगर ये कनेक्टिंग वायर को मैं निकाल दूंगा तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 4R होगा। लेकिन ये कनेक्टिंग वायर अगर मैं जोड़ दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। As if these two resistors are eliminated from the circuit because the current will not flow. Okay? तो यहां देखो 2R रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको देखना पड़ेगा। जहां भी कनेक्टेड वायर है आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलो और भी करते हैं। सपोज देखो ये एक रजिस्टर है, ये मेरा सेकंड रजिस्टर, ये मेरा थर्ड रजिस्टर, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी। सपोज इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर। मेरे को बताओ अभी ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा? सो आर इक्विवेलेंट, बिकॉज 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, वेरी सिंपल, इट इज 3R। लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट देंगे। चलो देखो क्या करेंगे, यहां से एक, यहां तक एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे, यहां से एक, यहां तक और एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे। तो देखो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, प्रॉब्लम अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन आपको मालूम है शॉर्ट सर्किट होने से यहां का पोटेंशियल देखो, ये जो अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। दैट मींस इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम होगा। जब तक कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई रेजिस्टर नहीं होगा, कोई कैपेसिटर नहीं होगा, कोई इंडक्टर नहीं होगा, तब तक पोटेंशियल सेम होगा। These are just connecting wires. क्लियर? तो पोटेंशियल सेम होगा। यहां भी देखो जो पोटेंशियल है, बी का जो पोटेंशियल है, यहां का भी वही पोटेंशियल, यहां का भी वही पोटेंशियल, यहां का भी वही, यहां का भी वही, यहां का भी वही, ये भी बी, ये भी बी। तो देखो देखने से पता नहीं चल रहा है ये जो 3 रेजिस्टर्स वेदर दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट बनाना पड़ेगा। देखो इसको मैं वेरी सिंपल वे में देखो कहते बता रहा हूं, ए एक पॉइंट कर दूंगा और बी एक पॉइंट कर दूंगा, ए एक पॉइंट, बी एक पॉइंट। देखो ये जो रजिस्टर को देखो, ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर है, ये मेरा सेकंड रजिस्टर है और ये मेरा थर्ड रजिस्टर है। देखो ये जो फर्स्ट रजिस्टर कौन सा 2 टर्मिनल से कनेक्टेड है? देखो ए और बी में, ए और बी में कनेक्टेड है। चलो इसको बना दो, देखो ए और बी में कनेक्टेड। सेकेंड रजिस्टर को देखो ए और बी में ही कनेक्टेड है, देखो ए और बी में भी कनेक्टेड है। चलो नीचे बना दो इसको, ये हो गया, ये हो गया। देखो इसको थर्ड रजिस्टर को देखो, ये भी ए और बी में कनेक्टेड है। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, लेकिन अभी क्या हो गया? पूरा सिंपल सर्किट हो गया। 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R equivalent will be equal to R divided by 3 by using this formula. R equivalent is equal to R by N. If N identical resistors are connected in parallel, then the formula will be R equivalent will be equal to R by N. तो यहाँ 3 रेजिस्टर having R resistance each are connected in parallel. That's why R equivalent is equal to R divided by 3. क्लियर हो गया? क्लियर? चलो ऐसे
करते जाते। तो देखो यहां एक रजिस्टर है और यहां भी देखो एक रजिस्टर है और यहां भी देखो एक रजिस्टर है। क्लियर? ये आर, ये आर, ये आर, ये मेरा टर्मिनल ए, दिस इज माई टर्मिनल बी। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। देखो देखो अगर ये ए पॉइंट होगा तो ये भी मेरा ए पॉइंट होगा। यहां का पोटेंशियल ए, यहां का पोटेंशियल ए, यहां का पोटेंशियल भी ए, यहां का पोटेंशियल भी ए। क्लियर? तो यहां का पोटेंशियल भी ए, यहां मेरा बी होगा तो इसका पोटेंशियल बी होगा, इसका पोटेंशियल बी होगा, इसका पोटेंशियल बी होगा, इसका पोटेंशियल बी होगा, इसका पोटेंशियल बी होगा। जब तक मेरा कनेक्टिंग वायर है तब तक सेम पोटेंशियल रहेगा। तो यहां एक पॉइंट बना दो ए, यहां एक पॉइंट बना दो बी। देखो ये रजिस्टर को कहां लगा है? ए और बी के बीच में लगा है। ये रजिस्टर को देखो सेकंड रजिस्टर ए और बी में कनेक्टेड है, ए और बी में कनेक्टेड है। ये थर्ड रजिस्टर को देखो ये भी मेरा ए और बी में कनेक्टेड है। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, देखो इधर कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ये वेरी सिंपल बन गया अभी। तो अगेन आंसर इज आर डिवाइड बाई 3 इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच इक्वल टू, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 3। क्लियर? ये सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चलो ये कंफ्यूजन करने के लिए फिगर को चेंज करेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हम डील कर सकते। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ओके, और ये एक रजिस्टर है, and this is my terminal A, this is my terminal B, resistance of each resistor R, find out the R equivalent। बताओ क्या होगा? पॉज करो और आंसर करो। वैसे ही अगर देखो ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा कि नहीं? देखो ये अगर B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा। बस फिनिश, काम खत्म। देखो ये क्या बन गया? तो मैं ए पॉइंट इधर बनाऊंगा, बी पॉइंट इधर बनाऊंगा। देखो फर्स्ट रजिस्टर, अगर ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है, ये थर्ड रजिस्टर है। फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, सेकंड रजिस्टर इज आल्सो देखो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, थर्ड रजिस्टर इज आल्सो कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। वही आंसर है, आर इक्विवेलेंट is equal to R divided by 3 if resistance of E is equal to R। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन दिख रहा है अलग, कंफ्यूजन कर रहा है हमको। ओके, अगर ये मेथड आप एडॉप्ट करोगे, शॉर्ट सर्किट का जो मेथड आप एडॉप्ट करोगे, जो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसको सेम नाम दे दो और पॉइंट बना के आंसर करो, हो जाएगा। चलो और देखो सपोज ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है, यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है और यहां एक रजिस्टर। 4 registers are connected like this। Suppose this is my point A and this is my point B across which the battery is connected। So find out R equivalent between A and B। Please adopt the same method of short circuiting। Please adopt the same method। देखो ये अगर B है, ये तो कनेक्टिंग वायर है, तो यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा। देखो यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा, देखो यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा, देखो यहां का पोटेंशियल भी सेम है, यहां का पोटेंशियल भी सेम है, यहां का पोटेंशियल भी सेम है, यहां का पोटेंशियल भी सेम है।
रास्ते में अगर कोई कैपेसिटर नहीं होगा, कोई रेजिस्टर नहीं होगा, कोई इंडक्टर नहीं होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा। तो फिर से बना दो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये अगर फर्स्ट रेजिस्टर है, ये सेकंड रेजिस्टर, ये थर्ड रेजिस्टर, ये फोर्थ रेजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस आर 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 ईच। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रेजिस्टर को देखो, कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। सेकंड रेजिस्टर को देखो, अगेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, अगेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। थर्ड रेजिस्टर को देखो, ये भी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, दिस इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। फोर्थ रेजिस्टर को देखो, अगेन इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। देखो सर्किट कितना सिंपल बन गया। ये देखने से कैसे हमको पूरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सर्किट रिड्यूस हो गया। ये जो शॉर्ट सर्किटिंग का जो कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम रिड्यूस करके एक सिंपल सर्किट बना दिया। तो अभी पता चल रहा है 4 रेजिस्टर्स of identical resistance R, that's why the R equivalent is equal to R divided by 4 ohm is my answer. क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर। चलो ऐसे करते जाते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज। सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और यहां एक रेजिस्टर है। ओके, यहां एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है, और यहां एक रेजिस्टर है। आर 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 आर। नाउ द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी। फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अभी देखो यहां का पोटेंशियल वी सपोज, यहां का पोटेंशियल सपोज वी। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा, यहां का भी वही पोटेंशियल होगा, तो ये बी पॉइंट होगा, ये भी बी पॉइंट होगा। देखो कोई एलिमेंट नहीं है, यहां भी कोई एलिमेंट नहीं है, बी होगा। यहां भी देखो कोई एलिमेंट नहीं है, बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी देखो बी, ये भी देखो बी। यहां देखो एक अननोन पॉइंट है, अननोन पॉइंट है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। चलो इसको एक्स दे देते हैं, इस पॉइंट को एक्स नाम दे देते हैं। तो क्या करेंगे, अभी यहां रखेंगे हमारा ए पॉइंट, और यहां रखेंगे बी पॉइंट, और बीच में कहीं एक्स को रख देंगे। द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, एंड एक्स इज माई इंटरमीडिएट पॉइंट। तो देखो सपोज ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का। देखो 1 नंबर को देखो, 1 नंबर जो हमारा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन जंक्शन एक्स एंड ए। एक्स एंड ए में ये कनेक्टेड है, एक्स एंड ए में देखो कनेक्टेड है। ओके, इसको देखो एक्स और बी में कनेक्टेड है, ये भी देखो एक्स और बी में कनेक्टेड है, ये भी देखो एक्स और बी में कनेक्टेड है। नाउ द सर्किट बिकम वेरी सिंपल। सी, सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड हो गया, लेकिन ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था। तो शॉर्ट सर्किट का जो कॉन्सेप्ट हमको इतना सिंपल सर्किट बना दिया। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सर्किट। तो नाउ इट इज आर आर आर। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा R डिवाइड बाई 3, और ये तो R है। सो R, दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट B, एंड दिस इज माई पॉइंट X। सो 2 रेजिस्टर्स आर नाउ इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको हम एक रेजिस्टर में रिप्लेस कर देंगे। ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा B। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R डिवाइड बाई 3। सो कितना हो जाएगा, 3R प्लस R, 4R डिवाइड बाई 3 ओम इज द आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर? एनी डाउट? प्लीज सी, प्लीज सी। ओके, चलो देखो शॉर्ट सर्किट का मैं बहुत प्रॉब्लम करा दिया। और इसके बाद हम एक
नई टाइप का प्रॉब्लम डील करेंगे, सक्सेसिव रिडक्शन। सक्सेसिव रिडक्शन ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। देखो सक्सेसिव रिडक्शन में क्या करते हैं, सपोज आपको ए से एक सर्किट दिया गया, ए से एक सर्किट दिया गया, यहां एक रेजिस्टर है और यहां भी देखो एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है और यहां फिर से एक रेजिस्टर है। ओके, यहां भी एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टर है। इसका रेजिस्टेंस सपोज 5 ओम, इसका 3 ओम, ओके, इसका 2 ओम, इसका 10 ओम, इसका 2 ओम, सपोज 3 ओम, इसका 2 ओम, ओके, इसका अगेन 10 ओम, इसका सपोज 2 ओम, इसका सपोज 3 ओम। ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी। फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सोचो, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इस मेथड को हम सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं। क्या करेंगे, हम रेड्यूस करते जाएंगे, सर्किट को रेड्यूस करते जाएंगे, फाइनली हमको एक रेजिस्टर मिलेगा, वही रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमको आर इक्विवेलेंट दे देगा। चलो अब देखो, यहां से ये पॉइंट से ये पॉइंट, देखो ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में, ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है। तो 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा के एक रेजिस्टर बना दूंगा, एक रेजिस्टर बना दूंगा जिसका रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। कितना हो गया, 10 ओम, बिकॉज 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। फिर से देखो, ये जो 10 ओम, ये 10 ओम, दो रेजिस्टर, दे आर इन पैरेलल, they are in parallel because the potential difference across this resistor is equal to potential difference across this resistor. If potential difference is same, then if potential difference is same, it is parallel connection. So 10 ohm 10 ohm are in parallel. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई N। सो 10 डिवाइड बाई 2 मींस कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो ये दो मिलके 5 ओम हो जाएगा। ये दो को हटा के एक में लगा दूंगा, जिसका हो जाएगा कितना, 5 ओम हो जाएगा। देखो कैसे रेड्यूस होते जा रहा है, रेड्यूस होते जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन। तो देखो ये फिर से देखो 3 ओम 5 ओम एंड 2 ओम, दे आर इन सीरीज, सेम करंट फ्लो कर रहा है। अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो ये सीरीज कनेक्शन का, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सो ये तीनों मिलके फिर से क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये फिर से मिलके 10 ओम हो जाएगा। देखो ये 10 ओम, ये 10 ओम, दो रेजिस्टर, दे आर इन पैरेलल अगेन, दैट्स व्हाई द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 5 ओम, 10 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला देखो। सो ये दोनों को हटा के मैं एक बना दूंगा, इसका हो जाएगा 5 ओम। देखो ये 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो ये तीनों को उठा के मैं एक बना दूंगा, 3 प्लस 5 प्लस 2, 3 प्लस 5 प्लस 2, तो एक बना दूंगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। सो आंसर इज 10 ओम। देखो कितना बड़ा सर्किट था, पूरा रिड्यूस होते होते एक रेजिस्टर हो गया, जिसका रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये होता है सक्सेसिव रिडक्शन प्रोसेस। रिड्यूस करते जाओ, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। चलो इस टाइप का और 2-3 प्रॉब्लम करते हैं। चलो देखो, सपोज ये एक सर्किट है, जो कि यहां एक रजिस्टर है और यहां एक रजिस्टर है और यहां भी देखो एक रजिस्टर है
यहां भी एक रेजिस्टर है। ओके, सपोज बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन, यहां भी एक रेजिस्टर है। ओके, सो बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड पॉइंट बी। इसका रेजिस्टेंस दिया गया है सपोज 3 ओम, ये 7 ओम, ये सपोज 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टर्मिनल्स ए एंड बी। तो क्या करेंगे, फिर से सक्सेसिव रिडक्शन का प्रोसीड्यूर एडॉप्ट करेंगे। देखो, या ए से शुरू करेंगे, ए से ये पॉइंट तक, ए से ये पॉइंट तक। ये देखो सीरीज में है, 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज। ये दोनों को उठा के कितना लगाएंगे, एक रेजिस्टर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। चलो इसको उठाओ, हटाओ इसको, लगाओ एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, 10 ओम हो जाएगा। तो देखो ये 10 ओम, ये 10 ओम मिलके क्या हो जाएंगे, एक रेजिस्टर बनेगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो एक लगाएंगे, ये 2 को उठा के एक लगा देंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम हो गया। ये फॉर्मूला 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 ओम हो गया। देखो ये 5 ओम और ये 5 ओम, देखो दे आर इन सीरीज, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो 10 ओम ये 2 टर्मिनल में लगा देंगे, ये हो जाएगा मेरा 10 ओम। देखो ये 10 ओम और ये 10 ओम मिलके पैरेलल में, इसीलिए एक बन जाएगा। सो ये होगा ए पॉइंट, ये होगा मेरा बी पॉइंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ओम इज माई आंसर। So by adopting the successive reduction method, we can find out the equivalent resistance of a complicated circuit. चलो और भी कॉम्प्लिकेटेड मैं सर्किट आपको दे रहा हूं, और भी देखो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये देखो ये कितना साइड है, 1 2 3 4 5 हेक्सागन। ये हेक्सागन में यहां देखो एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है, और यहां भी एक रेजिस्टर है, और यहां भी एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टर है, ओके, यहां भी एक रेजिस्टर है। एंड बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस ए एंड बी। ओके, सपोज इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, इसका भी 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 3 ओम। क्लियर? अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूंगा, कर सकते हो क्या? ये देखो ये पूरा तो सीरीज में 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, आप निकाल सकते हो। लेकिन ये सर्किट ऐसा नहीं है, देखो देखो देखो, सर्किट ऐसा नहीं है, और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इधर एक रेजिस्टर है, इधर एक रेजिस्टर है, और इधर एक रेजिस्टर है। देखो सर्किट केस कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। इसका मेरे को चाहिए आर इक्विवेलेंट, फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे? अगेन वी विल अडॉप्ट द सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। देखो यहां से शुरू करेंगे, देखो ये 3 ओम, चलो करते जाओ, पॉज करके कर सकते हो तो करो, नहीं तो इधर देखो 3 ओम एंड 3 ओम दे आर इन सीरीज, 3 ओम एंड 3 ओम दे आर इन सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 ओम हो जाएगा। ये 6 ओम दिया गया है, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम। ओके, तो ये 3 और 3 मिलके हो गया 6 ओम। क्लियर? 3 ओम दे वर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। तो 6 ओम देखो दे आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 ओम हो जाएगा। चलो तो एक लगाएंगे, यहां 2 को उठा के एक लगाएंगे जिसका कितना होगा, 3 ओम हो जाएगा। फिर से देखो 3 ओम दे आर इन सीरीज, 3 ओम एंड 3 ओम दे आर इन सीरीज, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो फिर से देखो ये
6 ओम हो जाएगा। ये देखो 6 ओम और ये 6 ओम मिलके क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल। चलो ये 2 को हटाएंगे, एक लगाएंगे तो इसका 3 ओम। देखो ये 3 ओम, दिस 3 ओम, दे आर इन सीरीज, अगेन सीरीज। सो ये कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो ये 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। फिर से देखो 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो ये 3 ओम हो जाएगा। फिर से देखो ये 3 ओम, ये 3 ओम, दे आर इन सीरीज, तो 6 ओम हो जाएगा। ये दोनों को हटा के एक 6 ओम का रजिस्टर लगा देंगे, 6 ओम का रजिस्टर लगा देंगे। देखो 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल में? देखो 2 रजिस्टर का फॉर्मूला R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3। तो 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 ओम इज माय आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर। सो सक्सेसिव रिडक्शन करते फाइनली यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। चलो आगे बढ़ते हैं और एक केस देखते हैं। ये मेरा सेकंड टाइप था, हार्ड वन है मेरा। क्या है ये? मेरा किर्चॉफ्स लॉ रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। सो रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो। सपोज आपको एक रजिस्टर दिया गया, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज को याद करो। यहां मेरा गैल्वेनोमीटर था और यहां मेरा बैटरी था। मेरा प्रीवियस वीडियो को प्लीज देखो। तो गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं है, एक कॉइल है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। मैं इसको एक रजिस्टर में डिपिक्ट करूंगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, and battery is connected across the terminal like this. This is my point A, this is my point B. Find out the equivalent resistance between A and B. तो कैसे निकालोगे? Okay, we will use the concept of condition of balance. Condition of balance. देखो मैं आपको बताया था, ये जो रेशियो, इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R, इसको मानते हैं S। कंडीशन ऑफ बैलेंस मेरा क्या था? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S अगर होगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S अगर होगा, तो ये कंडीशन ऑफ बैलेंस होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट मेरा था D पॉइंट, ये मेरा था C पॉइंट, D और C पॉइंट, D और ये मेरा C था एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं। तो D और C पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का रेशियो, ये रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो D का पोटेंशियल C का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर यहां करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये रेजिस्टर रखने की जरूरत क्या है? इसको हटाओ। देखो सर्किट सिंपल हो गया। इससे पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभी पूरा सिंपल हो गया। देखो ये 2 सर्किट, ये 2 रेजिस्टर देखो सर्किट में सीरीज में, ये भी देखो सीरीज में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा। यहां भी देखो R प्लस R 2R हो जाएगा, 2R। This is my A point, this is my B point, across which my battery is connected. So 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R by 2, 2R डिवाइड बाई 2। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। फाइनल आंसर। सिंपल फॉर आंसर हो गया। ओके, तो चलो नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं। अगर
इस सर्किट को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं, थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे दूं? देखो देखो देखो, ये मेरा एक रेजिस्टर है, ये मेरा एक रेजिस्टर है, ये मेरा एक रेजिस्टर है, ये मेरा एक रेजिस्टर है। ओके, दिस इज माय टर्मिनल। ओके, यहां एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर। सो ये मेरा ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट अक्रॉस व्हिच द बैटरी विल बी कनेक्टेड। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट? बताओ। ये वही व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिखने में थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं, वही देखो, आर डिवाइड बाई आर, आर डिवाइड बाई आर, 4 रेजिस्टर्स एंड दिस इज द गाल्वानोमीटर। यहां गाल्वानोमीटर मेरा था। ओके, सो अगेन यहां का पोटेंशियल देखो, आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1, आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1। सो द रेशियो इज सेम। अगर रेशियो सेम हो गया तो यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो फिर से देखो, 2R आर इन पैरेलल, तो आंसर इज अगेन आर। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर इज माय आंसर। क्लियर? वही फिगर है। देखो ये थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। चलो और एक देखते हैं। तो देखो ये एक ट्रायंगल शेप का है, ये एक ट्रायंगल शेप का, और देखो इधर एक रेजिस्टर है, चलो देखो ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बताओ, देखो ये कैसे दिख रहा है? इसको थोड़ा सा पॉज करो, पॉज करके ये फिगर को अच्छी तरह देखो कैसे दिख रहा है। ये कुछ नया नहीं है। इसको एक काम करो, ये जो पोर्शन को, ये जो ए पोर्शन को पकड़ो और इधर लेके इधर लगा दो, ऐसे इसको उठा के इधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा ऐसे, ये इधर आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ए। देखो कोई नया चीज नहीं है। ये बी को आप इधर कर सकते हो, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, वही फिगर बन गया। देखो वही फिगर बन गया। अगेन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर, वही आंसर। क्योंकि ये इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये रजिस्टर को हम निकाल सकते हैं। वही व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। सो डिफरेंट टाइप्स का शेप है लेकिन वही आंसर। तो और देखो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, आर आर आर, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट। चलो इधर मैं एक रजिस्टर लगा दूंगा, इधर एक रजिस्टर लगा दूंगा, रेजिस्टेंस अगेन आर, रेजिस्टेंस आर। बताओ आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बताओ। देखो देखो फिगर को अच्छी तरह देखो। अगेन देखो 4 रेजिस्टर्स, 1 2 3 4, आर डिवाइड बाई आर, आर डिवाइड बाई आर 1, आर डिवाइड बाई आर 1, आर डिवाइड बाई आर 1। ये नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको हम हटा सकते हैं, देखो इसको हम हटा सकते हैं। देखो पूरा सिंपल हो गया। ये देखो R and R 2R, R and R 2R, 2R and 2R are in parallel. So again the answer is R. This was actually in the shape of Wheatstone bridge. थोड़ा सा अलग दिख रहा है लेकिन वही है, सेम है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए शेप थोड़ा सा चेंज कर देगा लेकिन आंसर वही होगा। चलो और एक देखते हैं। चलो देखो ये यहां एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है और यहां एक रेजिस्टर है। ओके, ये मेरा टर्मिनल ए, ये मेरा टर्मिनल सपोज बी। यहां एक रेजिस्टर है, यहां एक रेजिस्टर है और यहां एक रेजिस्टर है। बताओ, सपोज रेजिस्टेंस आर 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 आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? बताओ कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे? कर सकते हो क्या? देखो देखो देखो, अगर फॉर द टाइम बिंग यू एज्यूम दिस इज एब्सेंट, ये नहीं है, ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो ऊपर पोर्शन को देखो, ये ऊपर पोर्शन को देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बिकॉज R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 1, R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 1। तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R। ओके, ये जो 2R, ये 2R, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R। कितना हो जाएगा? R। तो इसको उठा के हटा के, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसका कितना हो गया? R हो गया। पहले से हम कर दिए हैं, ओके, पहले से कर चुके हैं हम। देखो R और R दे आर इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2। आंसर फिनिश। क्लियर? सो देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम वीडियो को इधर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे मैं और भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए और भी एक क्लास में लूंगा, वीडियो एक छोड़ूंगा। सो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एक होगा बड़ी डायगोनल, एक होगा फेस डायगोनल और एक होगा एड्स, और इनफाइनाइट सीरीज भी है, और सिमेट्रिक हमारा जो मिरर सिमेट्री होगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री होगा, पैरेलल सिमेट्री होगा, बहुत सारा, थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का प्रॉब्लम को हम डील करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल।